Assalamualaikum, my name is Kulsum and the following presentation is made only for the sole purpose of spreading knowledge and educating others and no personal benefits. The topic for today's presentation is eigenvalues and eigenvectors, and we'll be giving you a go-through on the introduction of eigenvalues and vectors, their applications, the building blocks, calculating their eigenvalues and vectors, their examples, and also MATLAB references for them. Let's start by introducing what actually eigenvalues are. Eigenvalues are defined as a set of values of a parameter for which a differential equation has a non-zero solution under given conditions. Also, any number such that a given matrix minus that number times the identity matrix has zero determinant. They basically are a special set of scalars that only associate with linear transformation of vector space. They're also called characteristic roots, characteristic values, or proper values, and each eigenvalue has its own representative eigenvector as well. Talking about eigenvectors, it is defined as a vector which, when operated on by a given operator, gives a scalar multiple of itself, which means that it does not change direction when transformation is applied to it, and that it is only a scaled version of the original vector. It helps us to look at the bigger picture of a large dimensional matrix. Eigenvalues and vectors are used to make linear transformation understandable by transforming and changing matrices into new vectors by multiplying a matrix with a vector, resulting in a new transformed vector. If the new vector is just a scaled form of the original vector, then the original vector is known as the eigenvector of the original matrix. Looking at this picture, we can clearly see three vectors, two red and one yellow, जिसमें से जो red वाले हैं वो eigenvectors को represent कर रहे हैं, जिस सिर्फ length की scaling हो रही है, जबकि yellow वाले में ना सिर्फ length बल्कि उसकी direction की भी changing आ रही है when we move this picture towards right. Only the red ones show a little bit scaling in their length. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास न्यू वेक्टर आता है उसमें हमारे पास जो चेंज इन साइज है वो हमें आइगन वैल्यू बताता है. अगर आइगन वैल्यू 2 है तो मतलब लेंथ इज़ डबल्ड. अगर आइगन वैल्यू हाफ है तो यानी कि लेंथ ओरिजिनल का हाफ हो चुकी है. Let's talk about some of the uses of eigenvalues and vectors, which include stability analysis, physics of rotating bodies, small oscillations of vibrating systems, differential equations. They can also be used to represent large sets of information in a small matrix, component analysis, and the most important, they can also be used in facial recognition techniques such as eigenfaces for security purposes. They can also be used in reducing dimensional space, in regulations, to construct special clusterings, and to rank items in datasets. In nonlinear motion, they can be used to help understand the data better, as they can be used to transform and represent data into manageable sets. Considering any 2 by 2 matrix, we multiply it by 1, 0, we get -1 and -2. Endpoints को अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना सिर्फ उसमें लेंथ का इंक्रीज हुआ है बल्कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है. ये तो थे कोई अपनी तरफ से रैंडम पॉइंट्स. अगर हम जनरली बहुत सारे इनपुट्स के लिए बहुत सारे आउटपुट्स कंसिडर करें और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है. अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें तो हमारे पास दो ऐसी लाइंस हैं जिनके अक्रॉस हर पॉइंट या तो सिर्फ स्केल कर रहा है लेकिन से उसमें कोई रोटेशन नहीं आ रही. ये दो लाइंस हमारे पास आइगन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनका स्केलिंग फैक्टर 1 और 3 है. 1 यानी कि इसके स्केलिंग फैक्टर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है और 3 यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर था हमारा वो 3 से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट देगा ये वाला. अब चेंज करते हैं रोटेशन वेक्टर में तो हमारे पास एक रोटेशन मैट्रिक्स ये हमें ग्राफ देता है. अब इसका हमारे पास आइगन वेक्टर क्या होगा? इसका आंसर है कि हमारे पास आइगन वेक्टर कोई नहीं है. 0 0 डजंट काउंट. आइगन वेक्टर ना होने की वजह यह है कि ये टोटल रोटेशन दिखाता है, स्केलिंग नहीं. लेकिन ये केस भी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ के कॉम्प्लेक्स केस में आता है जहाँ पे हम वेक्टर के ऊपर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ इनपुट डालते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो रोटेशन वेक्टर आता है. बात करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस की, विच इज़ अ सीक्वेंस जिसमें हर वैल्यू पिछली दो वैल्यूज़ का सम होती है एंड कंटिन्यूज सो ऑन. इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है. अगर इस सीक्वेंस से कोई वैल्यू उठा के मैं आपसे पूछूं कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. सो लेट्स जनरेट अ मैट्रिक्स फॉर दिस जिसमें सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन से हम किसी भी इनपुट वैल्यू के लिए अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट वैल्यू हासिल कर सकते हैं.
अब अगर हम सीक्वेंस में से कोई से भी दो नंबर, फॉर इंस्टेंस 8 और 5 को उठा के इनपुट में पुट करें तो हमारे पास 13 और 8 वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी, और ये इसका बिल्कुल नेक्स्ट टर्म है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेक करें तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक वैल्यू आ रही है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करें तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक आइगन वेक्टर को आइडेंटिफाई कर रही है, जो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स था। अब इस आइगन वेक्टर में कोई ना कोई आइगन वैल्यू भी होगी हर सीक्वेंस के लिए, और ये है गोल्डन रेशियो 1.6, यानी कि इस लाइन पे आने वाला हर वो नंबर यही रेशियो रखेगा, और ये इसी की आइगन वैल्यू होगी। अगर हम बात करते हैं 13 की और 8 की, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें गोल्डन रेशियो से तो नेक्स्ट 2 नंबर्स ही जनरेट होंगे। इसको अगर बड़े स्केल पे देखें और इसको जूम आउट करते रहें तो हमें जो डिज़ायर्ड नंबर था उससे गोल्डन रेशियो को मल्टीप्लाई करने से हमारा नेक्स्ट नंबर जो आंसर आया आउटपुट में वो भी इसी पे आया। इसी तरह अगर हम रैंडम नंबर्स कोई भी ले लें और उसको देखें तो ये सारे के सारे लॉन्ग स्केल में हमारे पास इसी आइगन वेक्टर की लाइन के ऊपर ही फॉल कर रहे हैं। ये तो बात थी फिबोनाची सीक्वेंस की। अगर मैं इस सीक्वेंस में से कोई से भी दो रैंडम टर्म्स उठा लूँ और उनकी आपस में एक सीक्वेंस जनरेट करती रहूँ विद द सेम जनरल फार्मूला, तो जो दो टर्म्स का रेशो होगा वो भी गोल्डन रेशो ही होगा, आइडेंटिफाइंग कि हमने जो मैट्रिक्स कंसिडर किया था वो बिल्कुल ठीक था। एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की, जिसमें हम मास को इनिशियल पॉइंट पर रख के ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दें तो वो बैक एंड फोर्थ अपनी मेन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे ऑसिलेट करता रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एक फोर्स इक्वेशन से, जिसमें हमारे पास डैम्पिंग कोएफिशिएंट और स्प्रिंग कांस्टेंट यूज़ होंगे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें यहाँ पे तो हमारे पास मास और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 है और जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है वो 0 है। दो डेरिवेटिव्स, दो वेरिएबल्स और कुछ कोएफिशिएंट्स, ये हमारे पास वही इक्वेशन बन गई जो हमारे पास पहले बनी थी। इस केस में हमारे पास आइगन वेक्टर्स इमेजिनरी होंगे क्योंकि यहाँ पे हम रोटेशन को देख रहे हैं। आइगन वैल्यूज लेम्डा इज इक्वल्स टू आयोटा की टर्म्स में है। यहाँ पे 0 जो है डैम्पिंग कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास फ़िलहाल 0 है। अभी अगर हम इंक्रीज़ करते रहें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो हमारे पास जो स्प्रिंग है वो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा विदाउट एनी डैम्पनेस, यानी कि इसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको किसी लिक्विड में रख के ऑसिलेट करवाएं तो हमारे पास डैम्पिंग कोएफिशिएंट b की वैल्यू डिक्रीज़ करनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव b की वैल्यू शो करती है कि हमारे पास यहाँ डैम्पिंग हो रही है, यानी कि मोशन कम हो रहा है और स्प्रिंग की ऑसिलेशन कम हो रही है। रोटेशन भी नेगेटिव्स में चली जाएगी। नेगेटिव वैल्यू डिके को शो कर रही है। अब अगर इस वैल्यू को हम कोई पॉजिटिव वैल्यू बनाएं तो उसमें हम देख सकते हैं कि अब जो वैल्यू है वो मीन से बढ़ रही है, यानी कि ग्रोथ को शो कर रही है, and so forth and so on. Building blocks of eigenvalues and eigenvectors revolve around the concept of matrices, which are used in machine learning problems to represent large sets of information in a more compact form. Eigenvalues and vectors are all about constructing one vector with one value to represent our large matrix. और ये एक बहुत ही बड़ी डायमेंशनल स्पेस को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। आइगन वैल्यूज और वेक्टर्स की कैलकुलेशन का तरीका बहुत ही सिंपल है, जिसमें हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं विद n नंबर ऑफ एंट्रीज इन रोज एंड कॉलम्स। इसमें एक बात है कि जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है कि नॉन ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लेम्डा इंटू एक्स। यहाँ पे इस इक्वेशन में आइगन वैल्यू हमारे पास लेम्डा है और x आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि a हमारे पास वो मैट्रिक्स था जिसके ऊपर स्केलिंग हो गई। अगर हम इस इक्वेशन के सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड पे लिख दें और x को रिप्लेस कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से और इसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए, which agrees to the form कि determinant of a square matrix must be equal to 0। अब अगर इसकी रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम कोई भी मैट्रिक्स A लेके उसको विजुलाइज करके आपको बताते हैं।
मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब है एज सच। इसके साथ हमारे पास दो वेक्टर्स मौजूद हैं x1 और x2। x1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और x2 हमारे पास डायगोनल है। अब ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों में से कौन सा आइगन वेक्टर है ए के लिए, इसको देखने के लिए हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए विजुलाइज करने के लिए हम इसको रोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। बारी बारी हम दोनों मैट्रिसेस को देखेंगे, वेक्टर्स को देख के हम देखते हैं कि कौन सा आइगन वेक्टर है। पहले बात करते हैं x1 को, x2 को अभी रहने दें और x1 को सिर्फ देखें। जब हम रोटेशन अप्लाई करते हैं तो x1 की डायरेक्शन और स्केलिंग पे गौर करें। रोटेशन से x1 की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब अगर हम और ज़ोर से देखें तो और ज़्यादा रोटेट करने पे x1 दोबारा डायरेक्शन चेंज कर रहा है। x2 पे आते हैं। जब हमने रोटेशन की तो x2 ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, इट ओनली स्केल्ड टू अ लॉन्गर लेंथ। अब दूसरी तरफ रोटेट करें तब भी x2 ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की और उसकी दोबारा से स्केलिंग हुई है, यानी कि उसकी लेंथ पहले से छोटी हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x2 is the eigenvector which shows no rotation, just scaling. In the real world, this concept is being used in the axle or drive shaft of automobiles, जिसमें rotation होती है. Somehow, eigenvalues and eigenvectors are used in designing of such components. Assalamualaikum, my name is Hayat Noor and I am going to present and solve the example problem of eigenvalues and eigenvectors. अभी तक हम eigenvalues और vectors की हम लोग ने applications देखी हैं, उसका फॉर्मूला देखा है। अब हम लोग उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकली भी, और हम लोग बाय मैटलैब भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है कि 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स एग्जांपल है। उसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो हम आइगन वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ए इज मैट्रिक्स, लेमडा हमारे पास आइगन वैल्यू होती है और आई जो होता है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले हम लेमडा को मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे एंड देन उसको हम लोग ए के साथ माइनस करेंगे। ए माइनस लेमडा आई करेंगे तो हमारे पास 2 माइनस लेमडा 1 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा 3 माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो लेमडा 1 और लेमडा 3 होंगे, जो कि हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं ए की। अब आइगन वैल्यू तो हम क्वेश्चन की एक डिमांड पूरी कर चुके हैं। अब दूसरी है कि आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है। ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी। अब ए जो है वो मैट्रिक्स है और वी इक्वेशन के राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है, और ये वी जो है ये आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और लेमडा जो है आइगन वैल्यू है। हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ए माइनस लेमडा आई वी इज इक्वल टू 0। ए माइनस लेमडा आई हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो हम लोग उसमें लेमडा इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारे पास 1 1 1 1 का मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, तो अब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि हमारे पास 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो हम दो वेक्टर्स लेंगे v1 v2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सोल्यूशन आएगा v इज इक्वल टू 1 माइनस 1। अब हम लोग सेम प्रोसीजर, हमारे पास आइगन वैल्यू 2 आई थी, एक लेमडा 1 आई थी, लेमडा 3 आई थी। अब लेमडा 3 के लिए करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में बस लेमडा की जगह 3 पुट कर देंगे। यहाँ पे u जो है वो आइगन वेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। u1 u2 हम लोग ने कर दिया, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा u इज इक्वल टू 1 1। तो अब हम कंक्लूड करेंगे कि वेक्टर्स v लेमडा 1 एंड लेमडा 3 आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ a एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यूज a1 लेमडा 1 एंड लेमडा 3 रिस्पेक्टिवली। अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। हमारी एग्जाम्पल 2 में हमें पहले 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स पढ़ा, अब 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसमें इन लोगों ने कहा हुआ है कि आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमें आइगन वैल्यू का फाइंड करने का फॉर्मूला पता है कि डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो हम मैट्रिक्स ए लिख देंगे, माइनस करेंगे आइडेंटिटी को लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग ने आइडेंटिटी, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
अब उसको जब हम लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। अब उसको हम लोग मैट्रिक्स ए के साथ जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन में 4 माइनस लेमडा 6 10 3 10 माइनस लेमडा 13 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस लेमडा आया है। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आफ्टर हैविंग एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल द मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा। अब ये हमारे पास आंसर आया है डिटर्मिनेट ए माइनस लेमडा आई का। तो अब हमें लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लेमडा हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास लेमडा 1 आ गया 0। अब बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो है लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 8। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो अब हमारे पास a है 1, b 6 है, c जो है वो माइनस 8 है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी 4 और माइनस 8। तो हम लेमडा 2 हमारे पास जो आया है वो माइनस 4 है और जो लेमडा 3 है वो माइनस 8 है। तो हम लोग ने आइगन वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। एक लेमडा 1 0 है, लेमडा 2 माइनस 4 है और लेमडा 3 जो है वो माइनस 8 है। अब हम लोग मैटलैब की प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो हमारे पास एग्जांपल 1 है कि हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स है, 3 into 3 का मैट्रिक्स है। हम मैटलैब में सबसे पहले हमारे पास ये रूल होता है कि हम लोग उसको असाइन करते हैं, सिंबल असाइन कर देते हैं या कांस्टेंट असाइन कर लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए सी लिख दिया है, हम लोग ने असाइन कर दिया है सी। अब एक मैट्रिक्स हम लोग ने उसको असाइन कर दिया सी इज इक्वल टू, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं यहाँ -4 1 0। एक रो से दूसरी रो में जाने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे 0 -3 1। अब सेकंड से थर्ड रो में जाने के लिए 0 फिर सेमी कॉलन और फिर लिखा है 0 0 -2 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सी की वैल्यू आ गई। अब डिटर्मिनेंट हम लोग ने लेना है, फर्स्टली यही होता है ना, डिटर्मिनेंट सी ब्रैकेट में लिख देंगे राउंड ब्रैकेट में, तो हमारे पास -24 आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इनवर्स लेंगे सी का, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। अब हम लोग ने जैसा कि मैंने शुरू में बोला है कि हम लोग मैटलैब में असाइन करते हैं, नंबर्स असाइन कर देते हैं, डिजिट्स असाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने h कोई भी कांस्टेंट है, हम लोग ने h को असाइन किया, h इज इक्वल टू आइगन। अब आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं तो हम आइगन यहाँ पे जो मैटलैब की लैंग्वेज में EIG यूज़ करेंगे, EIG एंड हम लोग ने राउंड ब्रैकेट में C लिखा है क्योंकि हमने C का आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास H की वैल्यू आ गई। अब हम लोग ने V भी फाइंड करना है और H भी फाइंड करना है। H हमारे पास आइगन वैल्यू C और V हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर। V जो है हम यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो VH हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट में लिखा है इज इक्वल टू आइगन C। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, हमारे पास V की अलग से वैल्यू आ जाएगी और H की अलग से वैल्यू आ जाएगी। अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 2 हमारे पास जो है उसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 3 into 3 का ही मैट्रिक्स है और हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो B है। B इज इक्वल टू 4 6 10। फिर हम लोग एक रो से दूसरी रो में जाने के लिए सेमी कॉलन यूज़ किया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ B लेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी -4.8850 E -15। अब हम लोग इन्वर्स ले लेंगे B का। जब हम इन्वर्स B का लेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। अब जिस तरह हम लोग ने प्रीवियसली किया है इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट असाइन किया है G। हम लोगों ने G इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ आइगन B। तो हमने B के निकाल लिया, आइगन वैल्यू निकाल ली एंड देन हम लोगों ने इसका V भी फाइंड करना है और G भी हम लोग मतलब साथ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो V G हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू आइगन वैल्यू, आइगन को ब्रैकेट में B कर दिया तो हमारे पास V की अलग से वैल्यू आ गई और G की अलग से वैल्यू आ गई। So this is from our side. Thank you so much, and these are the references from where we have taken some of our material. So thank you so much.